Hello students, today we will discuss about kinetic theory of gases unit 3, and the topics we will discuss about law of equipartition of energy and Brownian motion. First we will discuss about law of equipartition of energy. For this we consider a dynamical system in equilibrium, and the energy of the system, we consider that the total energy occupied by the system की जो total energy है that is equally distributed among various degrees of freedom, उसके जो total degrees of freedom है सभी में equally distributed है. And we consider that the energy possessed by each degree of freedom is half kT. According to law of equipartition of energy, the energy possessed by each degree of freedom is half kT, where k is the Boltzmann constant and T is the temperature. So we will prove this. For this we take the average kinetic energy of each gas molecule. Kinetic energy क्या होती है? हाफ mv square. And average kinetic energy of a gas molecule. For a single gas molecule, it has 3 degrees of freedom. If we have a single gas molecule, then it will have 3 degrees of freedom, that is it can move in 3 directions independently. So 1 degree of freedom के लिए kinetic energy क्या है? हाफ kT है. So therefore for 3 degrees of freedom its kinetic energy will be 3/2 kT. Here V is the velocity of the gas molecule, and this velocity of the gas molecule is free to move in either x direction, y direction or z direction. Therefore this velocity v square is the sum of vx square plus vy square plus vz square. Therefore average kinetic energy will be half m vx square plus vy square plus vz square. Also the particle can equally move in either direction with equal velocities. Vx square is equal to Vy square is equal to Vz square. Therefore we can put half m, velocities are equal, therefore their kinetic energy will also be equal. Half m Vx square is equal to half m Vy square is equal to half m Vz square. Let we say that it will be E1. Therefore the total energy will be half m Vx square plus half m Vy square plus half m Vz square will be 3 times of average kinetic energy E1. And also we have this is equal to 3/2 kT. Therefore 3 E1 is equal to 3 into 1/2 kT. Therefore average kinetic energy for each degree of freedom for a one gas molecule E1 is equal to half kT. This is the Maxwell's law of equipartition of energy, that is energy is equally distributed for each degree of freedom for every molecule in a gas. Next we study about Brownian motion. Brownian motion क्या है? हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या कंसीडर किया है कि जो मोलिक्यूल्स हैं गैस के, दीज आर रैंडमली मूविंग इन आइदर डायरेक्शन. और रैंडमली मूव कैसे करते हैं? दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. बेसिक कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है? जो गैस के मोलिक्यूल्स हैं दीज आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में रैंडमली मूव करते रहते हैं. रैंडमली मूव किस वजह से करते हैं? ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन और थर्मल हीटिंग इफेक्ट. थर्मल एजिटेशन मीन्स हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो गैस मोलिक्यूल्स हैं दीज आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रैंडमली. एंड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था क्यूरी सेशन में, व्हाट इज द कोज ऑफ ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन का कोज क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्राउनियन मोशन? सो दैट इज द थर्मल एजिटेशन और हीटिंग इफेक्ट. थर्मल एजिटेशन की वजह से ही जो आपके गैस मोलिक्यूल हैं दीज आर मूविंग रैंडमली, एंड दिस इज द कोज ऑफ द ब्राउनियन मोशन. सो फॉर दिस जो कंप्लीट आपकी गैस है, द होल गैस इज मोशनलेस. जो कंप्लीट आप गैस का एक कंप्लीट सिस्टम लेते हो, किसी सिलेंडर में लेते हैं या किसी भी बॉक्स में कंसीडर हम करते हैं, तो जो होल गैस का आपका कंप्लीट सिस्टम है दैट इज मोशनलेस, वो मूव नहीं कर रहा. बट द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर मूविंग वायलेंटली एंड इरेगुलरली इन डिफरेंट डायरेक्शन. बट जो गैस जिस मोलिक्यूल से बनी हुई है, जो वो मोलिक्यूल क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन.
और ये फिनोमिना सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ब्राउन ने ऑब्जर्व किया इन 1827 बाय यूजिंग द हाई रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप। उसने उसके लिए क्या कौन सा सिस्टम लिया? ही एग्जामिन्ड द एक्वस सस्पेंशन ऑफ फाइन लाइफलेस स्पोर्स। उसने एक्वस सस्पेंशन ली। एक्वस मीन्स जो सोल्यूशन आप वाटर की हेल्प से बनाते हैं, एंड सस्पेंशन का मतलब क्या है? जो पार्टिकल्स आप जिनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस पार्टिकल्स के मोशन को आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, दीज आर नॉट डिजोल्व इन द वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं है, बट आर सस्पेंडेड पार्टिकल। सो दिस इज द एक्वस सस्पेंशन। इसको आप कोलाइडल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन मीन्स द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन द मीडियम। जो भी आप मीडियम सॉल्यूशन आप लेते हैं, उसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो डिजोल्व ना होके क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं। उसने एक्वस सस्पेंशन को ऑब्जर्व किया विद द हेल्प ऑफ हाई पावर माइक्रोस्कोप। उसने क्या ऑब्जर्व किया? द स्पोर्स आर, जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो रहे थे? मूविंग इन रैंडम मैनर। देज आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। When he observed the colloidal solution under highly magnifying microscope, the suspended particles looked like, और जब उसने अनदर कोलाइडल सोल्यूशन, एक बार उसने स्पोर्स की एक्वस सोल्यूशन को ऑब्जर्व किया, सेकेंड टाइम उसने कोलाइडल सोल्यूशन को ऑब्जर्व किया अंडर हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल थे किसकी तरह ऑब्जर्व हुए? लाइक द स्टार्स ऑफ द लाइट, स्टार्स ऑफ लाइट की तरह ऑब्जर्व हुए, बट दे आर ऑल्सो मूविंग रैंडमली एंड कंटिन्यूसली इन ए रैंडम मैनर। दे आर ऑल्सो मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो every particle in the solution moves randomly in all directions. Thus the suspension, this spontaneous means continuous जो motion है, spontaneous बिना किसी आपने बाहर से कुछ प्रोवाइड नहीं करता, स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही वो मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। देयर इज नो ब्रेक इन द मोशन ऑफ दीज पार्टिकल्स एंड इरेगुलर मोशन। सो दिस spontaneous, continuous and irregular motion of the molecules is known as Brownian motion. ब्राउन के बाद अलग अलग साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए टू वेरीफाई द एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्राउन। सो these experiment also show that जो आपका जो रैंडम मोशन है और इरेगुलर मोशन है, स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूस मोशन है, ये किसी भी केमिकल और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की वजह से नहीं है। हम इसको कोई केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे, ना हम इलेक्ट्रिकल फील्ड और कोई एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड is increased and also found to depend upon the molecular size। जो आपका ये मोशन है पार्टिकल जो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर ऑफ द गैस। गैस का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मोशन उतना ही ज़्यादा होगा। ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मोलिकुलर साइज। और जो साइज ऑफ द मोलिक्यूल्स है इन द गैस, अगर साइज मोलिक्यूल का ज़्यादा होगा तो मोशन कम होगा, एंड साइज अगर छोटा होगा उतना ही मोशन आपका, उनकी वेलोसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है। So for explaining the Brownian motion, the suspended particles are considered as the floating bodies in a sea of molecules. Therefore Brownian motion को explain करने के लिए जो suspended particle हैं वो क्या हैं? As the floating body हैं, वो float कर रही हैं in different directions in the sea of the molecules। जो complete molecules का जो system है that is a gas, the molecules are the floating bodies। एंड वो फ्लोट किसकी वजह से कर रहे हैं? द थर्मल एनर्जी ऑफ द सोल्यूशन। एंड जो थर्मल एनर्जी, जो कंप्लीट थर्मल एनर्जी है वो क्या है? इज शेयर्ड अमंग ऑल द मोलिक्यूल्स। जो कंप्लीट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो हर एक मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होती है? शेयर की जाती है। एंड ईच मोलिक्यूल हैज एन एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और हर एक जो गैस का मोलिक्यूल है उसकी थर्मल एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 3/2 kT एंड 1/2 kT फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक मोलिक्यूल के पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? इट हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट्स कंप्लीट टोटल
Average kinetic energy is 3/2 kT for every molecule. So the random motion of the molecules is because of the impact of the molecules from all sides. हर एक साइड से जो मोलिक्यूल हैं वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और मोशन गैस में मोशन कंटिन्यू रहेगा. ड्यू टू दीज इम्पैक्ट्स ए मोलिक्यूल एक्सपीरियंस ए रिजल्टेंट फोर्स इन सर्टेन डायरेक्शन. एक आपने एक गैस मोलिक्यूल को कंसीडर करिएगा, उसे इस डायरेक्शन से भी मोलिक्यूल आगे टकराएगा, यहाँ से भी डिफरेंट चारों डायरेक्शन से उसके ऊपर मोलिक्यूल टकराएंगे. तो मोलिक्यूल आपका जो एक पर्टिकुलर मोलिक्यूल है वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि उस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है. ठीक है, तो अगर मोलिक्यूल का आपका साइज ज़्यादा है तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कम होगा, देयरफॉर वो पार्टिकल आपका बहुत कम वेलोसिटी से मूव कर पाएगा. बट अगर मोलिक्यूल का साइज कम है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़्यादा होगा, देयरफॉर उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. हेंस ब्राउनियन मोशन गिव्स द डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इरेगुलर मोशन. उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया इरेगुलर मोशन ऑफ द मोलिक्यूल्स, और वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, हीटिंग इफेक्ट की वजह से है. एंड इट इज़ द बेसिक अजम्पशन ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी हमने ये अज्यूम किया है कि जो गैस के मोलिक्यूल हैं दीज आर मूविंग रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस. How we can explain the quantitative theory of Brownian motion? Brownian motion की quantitative theory को explain करने के लिए different scientists ने theories दी. First theory was given by Einstein. Einstein suggested that the quantitative theory of Brownian motion and then tested it experimentally. उसने पहले theory उसका evidence दिया, quantitative theory provide की Brownian motion के लिए, और फिर उसने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया. एंड द सेम क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ ब्राउनियन मोशन वाज also verified by pairing. So by these theories it was established that it is due to the thermal agitation. डिफरेंट थ्योरीज की वेरिफिकेशन के बाद ये प्रूव किया गया कि जो रैंडम मोशन है पार्टिकल्स का और गैस मॉलिक्यूल का वो किसकी वजह से है, ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन. So first we consider the Einstein's theory. Einstein's theory states that the molecules diffuse in medium due to the thermal agitation. मीडियम के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे एक साइड से दूसरी साइड की तरफ मूव करना बाय पासिंग थ्रू ए लेयर. हमने जैसे एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया, उसके बीच में एक लेयर लगा दी और एक साइड से पार्टिकल दूसरी साइड में उस लेयर को क्रॉस करके जा रहे हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन. सो आइंस्टीन ने क्या स्टेट किया, जो मोलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं मीडियम में ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन. थर्मल एजिटेशन और हीटिंग इफेक्ट की वजह से ही जो पार्टिकल्स हैं और मोलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड में. दिस इज ए क्लोज रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड ब्राउनियन मोशन. सो ही एस्टेब्लिश्ड द रिलेशनशिप. उसने रिलेशनशिप निकाला बिटवीन द डिफ्यूजन कोफिशिएंट एंड ब्राउनियन मोशन. दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. ही कैलकुलेटेड. उसने इस रिलेशन को टू अलग अलग मेथड से निकाला. द फर्स्ट द इरेगुलर मोशन ऑफ द सस्पेंडेड मोलिक्यूल्स. फर्स्ट उसने क्या कंसीडर किया, जो सस्पेंडेड मोलिक्यूल्स हैं उनके इरेगुलर मोशन को कंसीडर किया. सेकंड में उसने क्या निकाला, द डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस. सेकंड उसने कैसे निकाला, उसने ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफरेंस लिया टू एंड्स के बीच में ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन ड्यू टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट द डिफ्यूजन कोफिशिएंट फ्रॉम इरेगुलर मोशन ऑफ द मोलिक्यूल्स. तो इसके लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, फॉर दिस वी कंसीडर द कोलाइडल सॉल्यूशन दैट इज केप्ट इन ए सिलेंडर. एक सिलेंडर हम कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल कर रखा है. इस सिलेंडर की लेंथ क्या है, L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A. एंड वी कंसीडर दैट एट एंड A the concentration of the particles or molecule is N1. concentration means number of particles or number of molecules per unit volume.
and number of particles at and 2 is N2. So we consider that N1 number of particles जो concentration एंड 1 पे है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द concentration एट एंड 2. सो इनकी वजह से क्या होगा, दोनों की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा. कंसंट्रेशन में डिफरेंट होगा तो हम क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट dN by dx. dx लेंथ के लिए कितना कंसंट्रेशन डिफरेंस है, dN का कंसंट्रेशन डिफरेंस है दोनों एंड्स के बीच में. ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया है. द कंसंट्रेशन, जब आपकी दोनों एंड्स पे कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो आपकी कंसंट्रेशन क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज इरेगुलर मोशन होगा. ठीक है, ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन एक एंड पे आपकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक पे कम है, तो वहां पर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा. ड्यू टू दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस द मोलिक्यूल्स डिफ्यूज फ्रॉम one end of the cylinder to the other end and travel a displacement of length L. L लेंथ का डिस्प्लेसमेंट पास करेंगे. जैसे 1 से आपके जो मोलिक्यूल है वो मूव करेंगे N2 की तरफ, एंड N2 के जो मोलिक्यूल है वो कहाँ मूव करेंगे, N1 की तरफ, सॉरी फर्स्ट एंड की तरफ. और जो मोलिक्यूल्स हैं वो T टाइम में टोटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर को पास करेंगे. लेट N1 एंड N2 हमने कंसंट्रेशन दोनों एंड पे अज्यूम की है. सो T टाइम में जो N1 एंड से कितने मोलिक्यूल्स N2 एंड की तरफ जाएंगे, N2 एंड की तरफ मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ट्रेवल करेंगे. द नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्रॉसिंग N1 टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन टाइम T. T टाइम में कितने जाएंगे, हाफ N1 LA. टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हम निकाल रहे हैं. N1 हमारी क्या है, कंसंट्रेशन है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एंड L इज द लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होगा, AL होगा. ठीक है, N1 आपकी क्या है, कंसंट्रेशन है, और नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या होंगे, सॉरी कंसंट्रेशन क्या है आपकी, नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम. अगर कंसंट्रेशन को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स. एंड वी हैव टेकन हाफ N1 LA. हाफ फैक्टर हमने क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि T टाइम में आपके हाफ नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ही N1 एंड से सेकेंड एंड की तरफ जाएंगे, हाफ मोलिक्यूल आपके सेकेंड एंड से फर्स्ट एंड की तरफ आएंगे. सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्रॉसिंग N1 टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन इन टाइम T इज हाफ N1 LA. सिमिलरली द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग N2 in left direction will be half N2 LA. Therefore, the total number of molecules crossing the middle layer, जो आपके सिलेंडर की जो मिडल लेयर है, कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पास करेंगे, आधे यहाँ से आ रहे हैं, आधे यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल विल बी हाफ. यहाँ से आपके आ रहे हैं, कंसंट्रेशन N1 की ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, हाफ N1 LA माइनस हाफ N2 LA. दैट विल बी इक्वल टू हाफ N1 माइनस N2 बाई L. L से हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, L स्क्वेयर A. एंड ऑल्सो द डिफरेंस ऑफ द कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लेंथ इज द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन विद लेंथ, दैट इज इक्वल टू माइनस dN बाई dx. माइनस साइन क्यों लिया है, बिकॉज कंसंट्रेशन N1 इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन N2. देयरफॉर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग द मिडल लेयर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपके क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्रॉसिंग द मिडल लेयर. अगर हम इसको लें पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो हमें इसको एरिया से और टाइम से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और T इसके नीचे आ जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 dN बाई dx L स्क्वेयर बाई T. सो डिफ्यूजन कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जो अभी हमने निकाला है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट वाज माइनस 1/2 dN बाई dx L स्क्वेयर बाई T डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, माइनस dN बाई dx. सो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस 1/2 dN बाई dx L स्क्वेयर बाई T डिवाइड बाय माइनस dN बाई dx. ये कैंसिल हो जाएगा तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, L स्क्वेयर बाई 2T.
that is diffusion coefficient is directly proportional to square of length and inversely proportional to time. Next we can calculate diffusion coefficient by other manner also. Diffusion coefficient can be calculated by considering the difference in osmotic pressure. तो हम डिफरेंट एंड पे डिफरेंट प्रेशर को कंसिडर करके भी डिफ्यूजन कोफिशिएंट कैलकुलेट कर लेते हैं. इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, एंड 1 पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है P1 और एंड 2 पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है P2. और प्रेशर आपको पता है गैस लो PV इज इक्वल टू nRT. तो यहाँ से आप प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो. P1 इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू N1 kT and P2 will be equal to N2 kT. N1 and N2 are the concentration at N1 and 2 respectively. Therefore the difference in osmotic pressure, जब concentration के आपका pressure के है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ जिस एंड पे आपकी concentration ज़्यादा होगी प्रेशर भी वहीं पे ज़्यादा होगा. So the difference in osmotic pressure will be P1 minus P2, that will be equal to N1 minus N2 into kT. प्रेशर से अगर फोर्स निकालना हो तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया एंड डिफरेंस इन प्रेशर इज P1 माइनस P2. सो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन ए सिंगल डायरेक्शन विल बी इक्वल टू P1 minus P2 into A, that will be equal to N1 minus N2 kTA. Here we have N is the number of molecules per unit volume of the cylinder and total number of molecule. N अगर आपका concentration है, number of molecules per unit volume. total number of molecule क्या होंगे, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम क्या है आपका LA. So total number of molecules in the cylinder क्या होंगे NLA. So total force एक्टिंग ऑन ए सिंगल मोलिक्यूल, एक सिंगल मोलिक्यूल पे ये हमारा क्या है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कंप्लीट सिस्टम एक्स डायरेक्शन में कंप्लीट सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज P1 माइनस P2A इज इक्वल टू N1 माइनस N2 kTA. एक मोलिक्यूल पे कितना फोर्स एग्जिस्ट करेगा, तो टोटल कंसंट्रेशन जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे, दैट इज NLA. So total force acting on a single molecule will be equal to P1 minus P2A divided by NLA. That is इसकी वैल्यू पुट कर दोगे N1 minus N2 kTA divided by NLA. That is N1 minus N2 by L into kT by N. And this is the concentration gradient, that is minus dN by dx. Therefore we have force acting on a single molecule is equal to minus kT by N dN by dx. और अदर उससे भी हम निकाल सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिंगल मोलिक्यूल. इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, जो सिंगल मोलिक्यूल है उसको हम स्फेरिकल शेप में कंसिडर कर लेते हैं. स्फेरिकल शेप में अगर आपका मोलिक्यूल है जिसका रेडियस है r एंड इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड वेलोसिटी इज यूनिफॉर्मली मूव करता है थ्रू आउट, एंड इफ द विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ द मीडियम इज नीटा, अगर आपका मीडियम क्या है विस्कस है तो उसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज नीटा. द विस्कस फोर्स कैन बी गिवन बाय द स्टोक्स लॉ, एंड स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग द विस्कस फोर्स ऑन ए सिंगल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू F डैश, दैट इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV. एंड जब इक्विलिब्रियम में होगा तो जो आपका फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू द रैंडम मोशन और ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और जो मीडियम की वजह से विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, दैट इज 6 पाई नीटा RV इज इक्वल टू माइनस KT बाई N dN बाई dx. देयरफॉर NV इज इक्वल टू माइनस KT बाई 6 पाई नीटा R dN बाई dx. दिस NV gives the number of particles per unit area per second, because N आपका क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड वेलोसिटी क्या है आपकी लेंथ बाय टाइम, और v आपका क्या है AL, तो N बाई AL इंटू L बाई T, तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज
टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ये आपका निकल गया टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम। एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट की आपको डेफिनेशन पता है, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो D इज इक्वल टू NV डिवाइडेड बाय माइनस DN बाई DX, और NV की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया माइनस KT बाई 6 पाई नीटा R DN बाई DX। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज इक्वल टू KT बाई 6 पाई नीटा R। So diffusion coefficient in terms of K is the Boltzmann constant and it is related to the gas constant K is equal to R by N, N is the Avogadro number, Avogadro number, और यहाँ पर आप कंसीडर कर रहे हो नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। सो D is equal to RT by 6 pi nita Rn। एंड फर्स्ट जो आपने इरेगुलर मोशन को कंसीडर करके निकाला था वहां पर आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट की वैल्यू आई थी L स्क्वायर बाई 2T। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, वी हैव L स्क्वायर बाई 2T इज इक्वल टू RT बाई 6 पाई नीटा Rn, देयरफॉर L स्क्वायर इज इक्वल टू RT बाई N T बाई 3 पाई नीटा R। यहाँ से आप एवोगेड्रो नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स in a gas, N is equal to RT by L square T by 3 pi nita R। गैस कांस्टेंट आपको पता है, टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर पे आप एवोगेड्रो नंबर और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन ए गैस वी कैन कैलकुलेट। लेंथ ऑफ ट्यूब जो आप सिलेंडर आप लेते हैं उसको निकाल सकते हैं। एंड T इज द टाइम टेकन बाय द मोलिक्यूल्स टू मूव फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। एंड नीटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम एंड R इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। ये सारे फैक्टर कैलकुलेट करके आप एवोगेड्रो नंबर N की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।